اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سراہا ہے. اب کیونکہ 31 دسمبر آنے والا ہے تو پہلا ہاف جو ہے یوریا کی کنزمپشن کا وہ تقریباً 16 لاکھ میٹرک ٹن اس وقت تک 31 دسمبر تک آ جائے گی اور 1 جولائی سے 31 مارچ تک 18 ملین میٹرک ٹن 18 لاکھ میٹرک 1.8 ملین 18 لاکھ میٹرک ٹن اور پروڈکشن ہوگی. مگر کیونکہ زمیندار کو جب پانی دیتا ہے کسان تو اس کو یوریا کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے. انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بدقسمتی سے اس سال ستمبر میں 24% زیادہ یوریا اٹھائی گئی جو ڈیلرز کے پاس تھی. اکتوبر میں 24.24% اور نومبر میں 7.7%. تو 17.6% پچھلے سال سے زیادہ یوریا اس وقت پائپ لائن میں اصولاً ہونی چاہیے تھی اور ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ خاص طور پنجاب کے ساتھ مل کر ایک مربوط مانیٹرنگ کا نظام بنایا ہے جس کے تحت ہر ڈسپیچ کہ جو ڈیلیوری ٹرک کی شکل میں جا رہی ہے جہاں ٹرک جا رہا ہے ٹرک کا نمبر اس کے اندر کتنی بوریاں کھاد ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کو جا رہا ہے اور اس ڈیلر کا نمبر ہے. اس وقت اس کی مانیٹرنگ کے اندر پنجاب 88% یہ ڈیٹا ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کر چکا ہے. سندھ میں ابھی تک اس کی خاطر خواہ مانیٹرنگ کی خبر نہیں آ سکی. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور خاص طور پہ جب اب کینال کی وارہ بندی کا وقت آ رہا ہے صفائی کا تو اس کے بعد یہ جو ضرورت ہے اوورال پنجاب کی وہ کینال کی وارہ بندی اور پانی کے ساتھ چلی جائے گی جس کی وجہ سے جو پریشر ہے یہ کم ہوگا. تو میری التجا یہی ہے کسانوں سے بھی کہ وافر پروڈکشن ہے زیادہ دیر ڈیلر اپنے پاس یہ نہیں رکھ سکتا سٹاک اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. آپ مہربانی کر کے پینک بائنگ نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے بحرانی علاقے ہیں ہم اس وقت منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی موسمی میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے اور بارشوں کا جیسے سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ کا اٹک جھیلم چکوال پنڈی میں تو یہاں پچھلے سال کے مطابق 7,000 میٹرک ٹن ضرورت تھی. اس سال ہم نے 10,000 میٹرک ٹن کا بندوبست کیا ہوا ہے اور جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے پاس بھی اس وقت 65,000 میٹرک ٹن ہے. یہ سارے کے سارے نمبرز میں آج آپ کے تواسط سے یہاں جو میڈیا حضرات بیٹھے ہیں ہر فیکٹری کی پروڈکشن مہینے کی کتنے میٹرک ٹن پیدا کر رہے ہیں فرٹیلائزر پلانٹس وہ میں آپ کو شیئر کروں گا اور ایگزیکٹ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ یہ ڈس انفارمیشن یہ شارٹیج کی ایک پرسیپشن کریٹ کر کے زمیندار کو جو وہ 2 ہفتے کے اندر اس کو فل فور ضرورت پڑتی ہے پانی لگانے کے بعد اس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پروفٹ سیکنگ کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت شارٹیج ہے یوریا کی اور پاکستان خوش قسمتی سے 11% زیادہ بنائے گا. ہندوستان 5% پروڈکشن ہندوستان میں یوریا کی کم ہوئی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. جناب محترم فخر امام صاحب آگے لے کے چلیں گے اس گفتگو کو. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہمارا جو گندم کا سیزن گزرا اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی تھی 27.5 ملین ٹن. اس دفعہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اس ربی کراپ کا اور گندم کا خاص طور پہ وہ 28.9 ملین ٹن رکھا ہے جس میں
पंजाब का हिस्सा जो होगा तकरीबन 21.9 मिलियन टन, सिंध का 4 मिलियन टन और बाकी जो है बलूचिस्तान और केपी से आएगा। अब जो ये बात मेरे साथी ने की है कि जहाँ तक पैदावार यूरिया का ताल्लुक है वो पिछले साल से मार्च तक 11% ज़्यादा हो रही है, पर हमने ये भी देखा है फील्ड में कि कुछ लोगों ने उसको आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लें, होर्डिंग कह लें, विंडफॉल प्रॉफिटेरिंग कह लें, जो भी है काफ़ी दुश्वारी उन्होंने ग्राउंड पे पैदा की हुई। और हमारी तो यहाँ से यही कोशिश रही है वफाक की सतह पर, और इस चीज़ के ऊपर हमारी काबीना में भी गुफ्तगू होती रही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और हमारे जितने भी साथी हैं, ख़ासतौर हमारे जो MNAs और हज़रात हैं, कि जिस हद तक हो सकता है हमें अपने काश्तकारों को इससे आगाह करना चाहिए कि वो मेहरबानी करके तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का साथ, जैसे अभी कहा गया खुसरो साहब ने कि ये अब जिम्मेदारी तो आ गई है वफाकी सतह पे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरीज और फिर जो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वो तो ट्रैकिंग कर रहे हैं तकरीबन हर जो भी वहाँ से कंटेनर निकलता है या वहाँ से कोई ट्रक निकलता है कि जहाँ भी तहसील में जा रही है, जिस इलाके में जा रही है, कई जगह यूनियन काउंसिल में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टेजेस नज़र आती हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, क्योंकि जब तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तमाम तर तवज्जो हमारे साथी नहीं देते, और वो चंद अफराद जो हैं जैसे भी कहा गया, क्योंकि उनको नज़र आता है, और वो टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है हमारे जैसे मुल्क में जहाँ उनको आसानी से एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता हो, उनके साथ कुछ लोग फिर ऐसे मिल जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए, और उसके साथ वफाक का जो स्मगलिंग की भी एक रूमर्स चलती हैं या कहीं अगर हो रही है तो उसको भी, उसमें भी पूरी तवज्जो दी जाए। और आज उस पर डायरेक्शन पहले भी देते रहिए हमारी वफाक की सतह पर कि उसमें भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, और ज़रिया बलूचिस्तान या केपी के जो बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, क्योंकि बाहर इसकी क्योंकि इतना फ़र्क है कीमत का, तो हमें उस तरफ तवज्जो दे भी रही है सरकार, और हमें आवाम को भी आगाह करना चाहिए कि जहाँ भी हो सके इस चीज़ में उसको हाईलाइट करें और बताएं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हो रहा है। हमारा तो मकसद एक ही है, जैसे भी कहा गया कि क्योंकि बाराबंदी आ रही है सिंध में और पंजाब में जनवरी के अवाइल में 6 तारीख, और वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ज़रूरत तो इस वक्त है पहले पानी पे दूसरे पानी पे फौरी तौर पर, कि जिस हद तक हम उनको ये यूरिया मुहैया कर सकें, क्योंकि काश्तकार ने पाकिस्तान में एक बहुत ही बुनियादी रोल, मरकज़ी रोल उसने जो अदा किया है। हम उसकी सहूलत के लिए ये सारे जितने भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके लिए हैं, और कोशिश हमारी यही है कि जो 1768 रुपये फ़ी बैग की ऑफिशियल प्राइस है उस पर उसको ये खाद मुहैया की जाए। और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ पिछले 2-2.5 हफ्ते से ये तकरीबन उसके करीब करीब आ गए, क्योंकि पहले कुछ 2200 से 2300 रुपये भी वो जो ब्लैक मार्केटर्स थे, और वो शो ये कर रहे थे कि शॉर्टेज, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश पे बहुत सारे FIR भी रजिस्टर हुए, कुछ लोगों के तहवील में भी लिया गया। पर हमारी जो कोशिश है तमाम तर वो एक ही है कि काश्तकार को जिस हद तक हम पहुंचा सके, क्योंकि वो टारगेट तभी मीट होता है अगर ये वक्ती तौर पर ये इसका इस्तेमाल किया जाए, टाइमली सोइंग, क्योंकि कुदरत की मेहरबानी से इस दफ़ा जो हमारी बेस्ट सीज़न था यकम से नवंबर से लेके पहला हफ्ता दिसंबर तक तकरीबन 90% हमारी काश्त हो गई थी, और अभी तक ओवरऑल तकरीबन 95-96% काश्त हो चुकी है। तो हमें वो एक हमें फैक्टर बहुत बड़ा एडवांटेज आ चुका है। पर उसके साथ साथ ये जो एप्लीकेशन है फर्टिलाइज़र की, इसको भी वक्ती तौर पर जैसे किया गया, नीचे आए थे फॉस्फेटिक और ये अब एप्लीकेशन हो रही है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की, उसके साथ हमारी ये कोशिश होगी। और फिर जहाँ भी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और हमने सर्टिफाइड सीड भी जो था काफ़ी हद तक उसमें इजाफा हुआ है कि जो वो सीड जिसके टॉलरेंस हो अगेंस्ट रस्ट, वो भी हमने पहले से ज़्यादा मुहैया किया है। तो ओवरऑल हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है
वफाक की सतह पर वो यही है कि हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन फिर इस साल पूरी करने की कोशिश करें और उसमें फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया। अकरम अहमद सर साहब, आप सर ये बता दें कि इस सवाल ये काश्तकारों से मुतल्लिक मेरा सवाल है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात 15 दिन पूरे मुकम्मल तौर पर कवरेज की और आपको डिजास्टर पड़ा महंगाई का। मेरा आपसे ये सवाल है, जनवरी फरवरी मार्च जब तक ये गंदम नहीं आती तो हमारी आटे की कीमतें ज़ख़ीरा कर लेते हैं, गंदम को उस वक्त निकालते हैं और आटे की कीमतें और रोटी की कीमत तेल की तरफ, पेट्रोल की तरफ शूट करती है, ऊपर चल जाती है। इसके तदारक के लिए क्या करेंगे? और जाते जाते आप पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो नए सूबे की कोई खुशखबरी सुना सकती है इंतखाबात से पहले, बल्दियाती इंतखाबात से पहले? गुजारिश है, जहां तक आटा और गंदम का ताल्लुक है, पिछले आप देख लें 50 दिन का उठा के डे टू डे हमारे पास इंफॉर्मेशन है। गंदम और आटे की कीमतें जहां तक पंजाब और केपी का ताल्लुक है बहुत लो रही हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं। कराची और हैदराबाद में ज्यादा है, वहाँ इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा खुसरो मुख्तियार और सैयद फ़खर अमाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि आलमी मंडी में यूरिया खाद की कीमत 11,000 रुपये फी बोरी है। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा PTI हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसी मुतारिफ करवाई है।